Hello students. Students, in the last lecture we have discussed about one flow from .NET platform to .NET framework to CLR, and CLR to we have extract this particular CLR into main the component that is the portable executable files. Okay, and in that particular lecture we have discussed more elaborate the main component that is a common language runtime. In today's session, we'll be more discuss about one of the very important part, that is the Microsoft Intermediate Language. Okay, जो हमने पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल लास्ट लेक्चर में देखा था, वहां पर दो चीजें देखी थी हमने, मेटा डेटा एंड IL that is the intermediate language. So let's start this particular today's session. So these are the few things that we have discussed. The first, the main basic platform. From that particular platform we have derived .NET framework. Here this particular component is very important, that is common language runtime, that we have very detailed explained in the last lecture. Explain it. Now this particular common language having two main sections, bottom section CLR, and the second is nothing but .NET portable executable files. आफ्टर दिस वी हैव अगेन डिस्कस द पोर्टेबल एग्जीक्यूटिव फाइल को हमने अगेन डिराइव किया था, और यहाँ पर पोर्टेबल एग्जीक्यूटिव फाइल में कौन से मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे. यहाँ पर होता है मेन हेडर सेक्शन एंड दिस पर्टिकुलर CLR डेटा सेक्शन. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, दैट इज द इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट लैंग्वेज. ओके, as I know that in your syllabus they mentioned the MSIL, that is a Microsoft Intermediate Language, but it is also similar to the उसे common language common intermediate language भी कहा जाता है, उसे intermediate language भी कहा जाता है. So all these three terms are synonymous to each other. So this particular Microsoft Intermediate Language in software engineering, जैसे आप कोई भी अगर प्रोग्राम, जैसे हमने you people are aware about the C and C++ language. जो C++ का main advantage था, it is providing the object oriented facility. Okay, so there is a one very important concept is abstraction. जो object उसका हमने देखा ना, one of the features is abstraction, data abstractions. So what is meaning by this particular abstractions? We often know that abstraction to hide complexity of system or application services, providing instead simple interface to the consumer. यहाँ पर मेन क्या करता है एब्स्ट्रैक्शंस, जो आपका कोडिंग वाला पार्ट होता है उसे हाइड करता है, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो जिनके लिए आपने एप्लीकेशन बनाया, वहाँ पर सिर्फ उसका मेन पार्ट वहाँ पर प्रोवाइड करता है. सो दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन. सो इन लैंग्वेज advances, scientists introduce different incarnation of language abstraction layer such as P code or byte code. Produced by P code produce एक compiler है, that is the Pascal compiler, उसे short form है P code, is an intermediate language that support procedural programming, and general we people also discussed in the last lecture the byte code which is generated by the Java compiler is an intermediate language that support object oriented programming, that particular features. So यहाँ पर main things दो here two things are very important. One, data abstractions, that is it is hiding unwanted details to the consumer. Okay, और second यहाँ पर point important है कि जो भी हम scientists लोग जो भी हैं the people who are develop और created this particular different concepts, सो उन्होंने एक डिफाइन किया कि कोई भी लैंग्वेज को ऐसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट किया कर सकते क्या, तो यस, सो दे हैव डिफाइन फ्यू लैंग्वेजेस. जैसे पास्कल लैंग्वेज आपको मालूम होंगी, इट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन दैट पर्टिकुलर एरा. इट इज़ नाउ नोबडी इज यूजिंग, अभी उसका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले उसका अच्छा यूज़ करते थे.
अभी डिफरेंट कंसेप्ट है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट एंड अदर जावा ने पॉपुलर है, तो पीपल आर नॉट रेफरिंग दिस पर्टिकुलर पास्कल लैंग्वेज। बट पास्कल का भी एक एडवांटेज था, पास्कल ने भी क्या किया था, इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड वहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर सकते थे, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग द प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसी तरह से जावा का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जावा क्या करता है, जो भी उसमें प्रोग्राम है वो कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। अब बाइट कोड इज टोटली independent from your whatever the program that you have written in Java language. So अब देखिए पास्कल ने भी उसका इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड है दैट इज प्रोवाइडिंग, एंड ऑल्सो जावा का बाइट कोड है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब .NET टेक्नोलॉजी डिफाइन किए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो डिसाइडेड दैट दे हैव टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, and that is they called common intermediate language. Okay, it is similar to the just like a bytecode. So this IL, that is the intermediate language, support all object oriented features including data abstractions, inheritance, polymorphism, and useful concepts such as exceptions, event handling. In addition to these features, intermediate language support other concepts such as properties, fields, enumerations, and different any. So .NET language may be converted into IL, that is intermediate language code. So .NET support multiple languages and perhaps multiple platform in the future. देखिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया है इसके पहले, पास्कल ने पी कोड एक डिफाइन करते थे, जावा क्या करता है उसका जो भी प्रोग्रामिंग होता है तो उसका कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। सो ये .NET टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ऐसी कंपाइलर कहेंगे उसे, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो कंपाइलर जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के थ्रू क्या होता है, इट इज़ आल्सो जो भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग लिखते हो .NET सपोर्ट करता है VB.NET को, C# को। सो यहाँ इस लैंग्वेज में जो भी आप कोडिंग लिखोगे वो कोडिंग क्या करता है, वो कॉमन एक ऐसा बाइट कोड में, जस्ट लाइक बाइट कोड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, उसमें वो कन्वर्ट करता है ताकि वो क्या होगा, वन प्रोग्राम आपने VB में लिखा है क्लास, सेम क्लास दैट यू कैन बी एक्सेस इन C#. So that is the main advantage of this particular IL. Microsoft intermediate language also known, जैसे हमने अभी just we are repeating this, it is a common intermediate language, that is a CIL is a set of instructions that are platform independent and are generated by language specific compiler from the source code. और वी आर डिस्कस नाउ, जैसे हमने बताया कि जो CIL है दैट इज अ कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड दैट इज अ टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज विच आर सपोर्टेड बाय .NET टेक्नोलॉजी। एंड दिस वो क्या करता है, फिर जो भी कंपाइलर में जैसे आपने C# में लिखा है तो C# वाला कंपाइलर क्या करेगा, दे कैन आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड एंड दे कैन बी कन्वर्टेड दिस पर्टिकुलर इनटू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। MSIL, that is Microsoft Intermediate Language Code, is platform independent and consequently it can be executed on any of the common language infrastructure. Next lecture में हम discuss करेंगे what is this particular common language infrastructure. Supported environments such as Windows .NET Runtime. Again दिस पर्टिकुलर IL प्लेटफॉर्म में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कौन से कंप्यूटर पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज वो नो इट इज़ नॉट एडिक्वेट टू द वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट इज़ इंडिपेंडेंट। सो एक लैंग्वेज का जो कोडिंग है वो अदर लैंग्वेज में भी वहाँ पर एक्सेसिबल हो सकता है, बट कौन सी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेजेस .NET टेक्नोलॉजी को सपोर्टेबल है, ऑल दिस लैंग्वेजेस। नाउ MSIL is converted into particular computer environment specific machine code by GIT compiler. This is done before the Microsoft IL can be executed. Also, the MSIL is converted into machine code
On a requirement basis, that is, JIT compiler compiles the MSIL as required rather than whole of it. ओके इतना तो आपका फ्लो क्लियर हो गया कि वन प्रोग्राम आपने काय में लिखा है, सी शार्प में लिखा है, उसमें वो कन्वर्ट काय में हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में. क्लियर दिस. नाउ अभी वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो कोडिंग है MSIL कोड, दैट इज नॉट डायरेक्टली कोड, तो उसके लिए कंपाइलर लगता है, उसे कहा जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर. दिस पर्टिकुलर JIT कंपाइलर ये क्या करेगा, जो कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड है उसे एग्जीक्यूट कर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन कोड लैंग्वेज में. दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और बाद में मशीन क्या करेगा, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है दैट एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर कोडिंग. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपका प्रोग्राम आपने लिखा 100 लाइन का, अभी वो कंपाइलर पूरा 100 लाइन वहाँ पर कन्वर्ट करेगा क्या मशीन कोड में? नो. सो उसमें क्या आपने फंक्शन यूज़ किए, 10 फंक्शन यूज़ किए हैं, और एक फंक्शन में है 10 लाइन्स. सो इट विल बी ओनली एग्जीक्यूटिंग ऑल दोज फंक्शंस, ऑल दिस पर्टिकुलर coding lines which are that you required. So that is one machine code on the requirement basis. जो भी फंक्शन आपको एक्सेस करना है, जो भी कोडिंग क्लास मॉड्यूल आपको एक्सेस करना है, so JIT only compile only that particular intermediate language code into this particular machine code and then execute by the hardware. Now in this diagram we can very easily understand all these particular things. So this is nothing but the execution process include the creation of MSIL and conversion of MSIL into machine code by using this particular JIT compiler. So यहाँ पर देखिए C sharp कंपाइल कौन करेगा, C sharp का कंपाइलर. उसी तरह से दिस इज द विजुअल VB.NET का कंपाइलर, JScript का कंपाइलर एंड F# भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, दैट पर्टिकुलर कंपाइलर. सो यहाँ पर हो गया कंपाइलेशन. नाउ ये पर्टिकुलर कंपाइलर कोड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू MSIL, that is converted into whole this particular compiled code converted into this particular common intermediate language code, that is .exe, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है .exe या फिर .dll फाइल में. exe मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, DLL मीन्स डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स. ओके अभी ये JIT कंपाइलर क्या करेगा, विजुअल बेसिक कंपाइलर ने क्या किया, विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया काय में, MSIL में. नाउ MSIL क्या करेगा, जो भी कंपाइलर कोड है अभी इसके बाद जो भी आएगा दैट इज अ सिमिलर, वो कौन सा रहेगा, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज. नाउ दिस पर्टिकुलर MSIL provide this particular JIT compiler and JIT converting this particular intermediate language code into the native code, that is a machine language code. मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और मशीन कोड फिर किसको प्रोवाइड किया जाता है, हार्डवेयर को. हार्डवेयर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर कोड एंड प्रोवाइडिंग अगेन टू द कंपाइलर एंड देन अगेन रिवर्स प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा. अगेन पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोग्राम आपने परफॉर्म किया है वो आपका एग्जीक्यूशन होगा. So this is the flow of how this particular your program execute while runtime. Now few more points. The source code is converted into MSIL by the language specific compiler, जो मैंने अभी आपको explain किया है, in a compile time of CLR. Also along with the MSIL, metadata is also produced in the compilation. The metadata contain the information such as definition and signature of the type in the code, runtime information and etc. यहाँ पर देख सकते हो दिस इज व्हाट कंपाइलेशन टाइम. जैसे आपने C और C++ का प्रोग्राम पहले हम कंपाइल करते हैं, बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो ये सभी कुछ पोर्शन कब होता है, कंपाइलेशन टाइम में. द कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर असेंबली इज created by assembling the MSIL. This assembly is basically a compiled code library that is used for security deployment, versioning, etc. And it is of two types, that is this particular process assembly which is supported .exe and library assembly
दैट इज अ .dll फाइल्स। अब यहाँ पर देखिए वन पर्टिकुलर वर्ड यूज किया हमने, असेंबली। असेंबली का मीनिंग क्या होता है? गैदरिंग, जो भी उसके रिलेटेड क्लासेस है, उसके रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए ना, दैट इज अ कंपाइल, दैट इज अ असेंबलिंग। ओके, सो ये जो कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज असेंबली इज क्रिएटेड assembling this particular whole this particular code which is generated by which is a Microsoft Intermediate Language Code। उसे फिर वो कंपाइल टाइम में जो भी आया है उसे उस तरह से एग्जीक्यूट करके उसको परफॉर्म करेगा। ओके, यहाँ पर मेन टू टाइप्स रहेगी उसकी, .exe वाली असेंबली एंड .dll वाली असेंबली। ओके, द JIT compiler then converts the Microsoft Intermediate Language into machine code that is specific to the computer environment that the JIT compiler runs on. The MSIL is converted into machine code on the requirement basis. That is, JIT compiler compiles the MSIL as required rather than whole of it, जो हमने इसके पहले डिस्कस किया है। JIT कंपाइलर MSIL का उसमें जो भी कोड उसे प्रोवाइड किया है उसे कन्वर्ट करेगा मशीन कोड लैंग्वेज में, और रिक्वायरमेंट बेसिस पे जो भी एग्जीक्यूट करना है इट विल बी एग्जीक्यूट ओनली दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड कोड। और रिक्वायर्ड कोडिंग जो भी फंक्शंस जस्ट लाइक ए मॉड्यूल आपने आपको उसका उतना एग्जीक्यूट करना है, सो इट विल बी ओनली converting that particular coding into the machine coding, and machine code will be execute that particular machine code which is provided by JIT. The same thing is here, machine code obtained using JIT compiler is then executed by processor of the computer. अब मशीन कोड कौन सा है? JIT में JIT ने क्या कर दिया, MSIL को कन्वर्ट कर दिया मशीन कोडिंग में, और ये मशीन कोड मीन्स दिस पर्टिकुलर इट इन बाइनरी डेटा, जैसे कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर बाइनरी फॉर्म्स, सो दिस पर्टिकुलर नॉट अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब अगर उसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इट इज़ ओनली अंडरस्टैंड द कंपाइलर, क्योंकि मशीन इज ओनली अंडरस्टैंड द जीरोज एंड वंस एंड इट्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। सो ये जो मशीन कोड रहता है इट इज़ ओनली अंडरस्टैंड बाय प्रोसेसर हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करके उसका अगेन जो रिजल्टेंट है उसको अगेन रिप्लाई करेगा JIT कंपाइलर को। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स स्टूडेंट्स अबाउट how this particular your general language executing the code, and what is the role of this particular MSIL, that is a Microsoft Intermediate Language, and its coding which is in the form of .exe and .dll, importance of this particular JIT compiler, machine code, and then it is executed by the processor. So I hope that you all are understand it. Suppose not understand any particular point, you can reply me as in a comment session, so we'll be more elaborate this particular point in our actual online sessions. So thank you for watching and keep learning.